Hello everyone, this is Ghazala Haq and welcome to GH Biology. Today we are going to start the next chapter, that is biological classification in our NEET Botany series. We'll be covering up all the previous year's questions from the topic Monera. So let's begin. Let's look at the first question, which says which of the following is a correct statement. First option is mycoplasma have DNA, ribosome and cell wall. तो mycoplasma smallest prokaryote है और माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट इसलिए है क्योंकि इट डजेंट कंटेन सेल वॉल इज एब्सेंट. तो डीएनए प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स होंगे, बट सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट, सो दिस बिकम्स इनकरेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा. तो मोनेरा किंगडम को कार्ल वोस ने सब डिवाइड किया था इनटू two kingdoms, that is Archaebacteria and Eubacteria, which means true bacteria. Eubacteria के अंदर Cyanobacteria, which is blue green algae, उनको रखा जाता है. Cyanobacteria of course autotrophic होंगे क्योंकि इनके पास chlorophyll A है, because of which it can synthesize its own food. So this one is correct option. Third one is bacteria are exclusively heterotrophic organism. So they are mostly heterotrophic, but they can be autotrophic also. So this option is incorrect. The last one is slime molds are saprophytic organisms classified under kingdom Monera. No, they are classified under kingdom Protista. So the correct option here is option 2. The next question is which of the following is incorrect about cyanobacteria? First option is they are photoautotrophs. So of course they are photoautotrophs क्योंकि इनके पास होता है chlorophyll A, which helps them to photosynthesize and form their own food. So this is correct. Next one is they lack heterocyst. Now heterocyst are what? In case of filamentous cyanobacteria, say for example nostoc, they have specialized cells called heterocyst which helps in the nitrogen fixation. तो इनके वेजिटेटिव सेल में फूड बनेगा और हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है. सो दे डोंट लैक हेट्रोसिस्ट. दिस इज इनकरेक्ट. Now, in option 3, we have they often form blooms in polluted water bodies. Now, what happens is that polluted water bodies में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और बहुत सारे न्यूट्रिएंट का अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है. बिकॉज ऑफ सच न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट देयर इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया. Now, since these bacteria are called blue-green algae and they kind of bloom in water because of such nutrient enrichment, they form algal bloom. So this is also correct. The fourth option is they have chlorophyll A similar to green plants. So of course they have chlorophyll A present. तो यहाँ पे incorrect option पूछा गया है. So it will be option 2. In the next question, we have to match column 1 with column 2. First one is halophile. Halophiles are salt-loving archaebacteria and they will be found in salty areas. The next one is thermoacidophiles. These are also archaebacteria जो ज़्यादा टेम्परेचर और लो pH में एसिडिक कंडीशन में पाए जाएंगे. सो दिस करेक्टली मैचेस विथ हॉट स्प्रिंग. देन द थर्ड वन इज मिथेनोजेन. मिथेनोजेंस आर ऑल्सो अंडर आर्कीबैक्टीरिया. दे सिंथेसाइज मीथेन गैस and they are present in the gut of ruminant. So this matches with gut of ruminant. The third one is cyanobacteria. Cyanobacteria aquatic organisms होते हैं. They can be found either as free living form or they can make symbiotic association with higher plants or fungi. So this correctly matches with aquatic environment. So the correct option here is option A. Next question is which of the following are found in extreme salty conditions? So as we have discussed, in extreme salty conditions, halophiles are found, and halophiles comes under what? They comes under archaebacteria. So if we look at the option, the fourth option says archaebacteria, which is the correct one. The next question is DNA replication in bacteria occurs. So for this we have to first understand the mode of reproduction in bacteria. Bacteria commonly reproduces by means of binary fission. Binary fission में क्या होगा? बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट होंगे, the DNA is replicated and then this DNA is
equally divided into two daughter cells. And finally, we are getting the two daughter cells with equal number of chromosome as that in the parent. तो ये चीज होने से पहले, बाइनरी फिशन होने से पहले, वी आर seeing here that DNA replication is taking place. So if we look at the options, the first option says within the nucleolus. तो nucleolus तो बैक्टीरिया में देखा ही नहीं जाता है, और अगर होगा भी तो nucleolus का काम क्या है, राइबोसोमल आरएनए बनाना. So this is incorrect. Next one is prior to fission. So as we have seen, prior to fission DNA replication takes place. थर्ड वन इज जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन. तो ये भी हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन के पहले ही डीएनए रेप्लिकेशन होगा, लेकिन इससे भी पहले क्या होगा, फिशन होना जरूरी है. फिशन से दो डॉटर सेल बनेंगे. अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा. सो दिस वन ऑल्सो बिकम्स इनकरेक्ट. The next option is during S phase. So in bacteria, S phase is not so prominent. So this is also incorrect. So the correct option here is option B. The next question is, which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals, and can survive without oxygen? तो यहाँ पे अगर options देखी जाए तो Pseudomonas, Mycoplasma, Nostoc, Bacillus सारे बैक्टीरिया दिए हुए हैं. And we all know that the smallest living cell as given in the question are the mycoplasma. माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट क्यों है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है. एंड माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक. अब किसे किसे ये इन्फेक्ट कर सकता है, ये प्लांट को भी इन्फेक्ट करेगा और ये एनिमल को भी इन्फेक्ट कर सकता है. और एक और खासियत इसकी क्या है कि माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. तो ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं. विदाउट अ डेफिनाइट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा. अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल. अब यहाँ पे हमें जो कोर कॉन्सेप्ट लगाना है वो है सेल एनवेलप. तो बैक्टीरिया के केस में सेल एनवेलप में तीन पार्ट्स होंगी. आउटर टू इनर वी हैव टू डिस्कस. तो सबसे बाहर की तरफ एक स्टिकी पार्ट होता है, एक स्टिकी आउटर कवरिंग होता है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं. उसके जस्ट नेक्स्ट वी हैव द सेल वॉल, और इनर मोस्ट साइड में वी हैव द सेल मेम्ब्रेन. अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है जो बैक्टीरिया को स्टिकीनेस प्रोवाइड करता है, ये लूजली एसोसिएटेड हो सकता है सेल वॉल के साथ. अगर लूजली एसोसिएटेड होगा तो इसे हम स्लाइम लेयर बोलेंगे. ये सेल वॉल के साथ टाइट एसोसिएशन में भी रह सकता है. टाइटली एसोसिएटेड ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड कैप्सूल. नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, द फर्स्ट ऑप्शन सेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बैक्टीरिया में होगा ही नहीं, ये इनकरेक्ट है. सेकेंड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज giving protection to the cytoplasm, not providing sticky character, so this is also incorrect. Third one is glycocalyx. So as discussed, this is the correct option which provides stickiness to bacteria. The fourth one says cell wall. Cell wall protection देगा, support देगा, stickiness नहीं देता है. So the correct option here is option C, glycocalyx. The next question is, which one of the following statements is wrong? फर्स्ट स्टेटमेंट इज गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट वन इज यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया. तो यू वर्ड का मतलब ही होता है ट्रू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया. सो दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई. सो दिस इज वेरी मच करेक्ट. The next one is cyanobacteria are also called blue green algae. तो ये भी correct है. तो यहाँ पे incorrect wrong statement हमें find out करना है, which will be option 2. The next question is, the primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include. तो यहाँ पे biogas किस गैस को डिनोट किया गया है? Biogas is basically the methane gas. अब मीथेन बनाने का काम कौन करते हैं? The methanogenic archibacteria, which are also known as methanogens. ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे रूमिनेंट्स के गट में और उनके डंग को यूज करके बेसिकली मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे.
Now, if we look at the option, option A में दिया हुआ है methanogen. So this is the correct option. The next question is chromatophores take part in. तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं chromatophores के बारे में. Chromatophores are membranous extensions जो कि स्टोर करते हैं कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और ये प्रेजेंट होंगे साइनोबैक्टीरिया में and they help in the process of photosynthesis. Now, if we look at the options, पहला ऑप्शन है photosynthesis जो कि करेक्ट होगा, दूसरा ऑप्शन है growth जो कि इनकरेक्ट है, थर्ड इज मूवमेंट विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट, फोर्थ इज रेस्पिरेशन तो इसमें मेसोजोम का रोल होता है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, फोटोसिंथेसिस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट है द विरोइड्स वर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोस्की. तो विरोइड्स क्या होते हैं? विरोइड्स आर बेसिकली द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन. अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विच इज सर्कुलर बट दे डू नॉट कंटेन एनी प्रोटीन कोट. प्रोटीन कोट इज एब्सेंट. अब इसको डिस्कवर किया था टी.ओ. डाइनर नाम के साइंटिस्ट ने. यहाँ पे दिया है आइवानोस्की. आइवानोस्की ने क्या किया था? इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. Next statement is W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized. So this is correct. Third one is the term contagium vivum fluidum. That means infectious living fluid was coined by M.W. Beijering. तो इन्होंने ही ये term coin किया था. किस वायरस के साथ ये डील कर रहे थे? He was dealing with TMV, tobacco mosaic virus. The next one is mosaic disease in tobacco and AIDS in human being are caused by viruses. तो ऑफ कोर्स मोज़ैक डिजीज TMV वायरस के थ्रू होगा और एड्स जो है HIV वायरस के थ्रू होगा. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इनकरेक्ट हमें फाइंड आउट करना है विच इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन. अब आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों में डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल एंड इन टर्म्स ऑफ cell membrane. If we talk about cell membrane, in case of Archaebacteria, the lipids which are present in the cell membrane are having ether linkage. So these are ether linked. और अगर हम U बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो U बैक्टीरिया में जो लिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में वो एस्टर लिंक्ड है. तो यही डिफरेंस है दोनों में. नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शन. द फर्स्ट ऑप्शन इज सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो ये करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज इनकरेक्ट. सेल शेप, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर. तो डीप सी वाटर में सबसे पहले तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी और न्यूट्रिशन भी कम पाया जाएगा. तो इस तरह के हार्श एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में द ओनली वन हु कैन सर्वाइव आर द आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि ये एक्सट्रीम अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी. ऑफ कोर्स ये भी एक्वाटिक एनवायरनमेंट में है पर ये डीप सी में नहीं पाए जाएंगे. द सेकेंड वन इज सैप्रोफाइटिक फंजाई. ये मेनली लैंड में पाए जाते हैं एंड फीड ऑन डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. द थर्ड वन इज आर्कीबैक्टीरिया विच इज द करेक्ट ऑप्शन. एंड द फोर्थ वन इज यू बैक्टीरिया. दे आर ऑल्सो नॉट फाउंड इन डीप सी. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, आर्कीबैक्टीरिया. The last question is pigment containing membranous extensions in some cyanobacteria are. तो हमने ऑलरेडी बात कर रखा है इन membranous extensions के बारे में जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है. कहाँ पे प्रेजेंट होगा? साइनोबैक्टीरिया में, और इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमैटोफोर्स. लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है न्यूमैटोफोर. तो दीज आर द
ब्रीदिंग रूट्स, जब प्लांट मार्शी एरिया में ग्रो करता है तो उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो रूट्स बाहर निकल जाते हैं, सो दीज आर कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स। नेक्स्ट वन इज हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट नॉस्टॉक में प्रेजेंट होता है, मॉडिफाइड सेल है जो कि किस चीज में हेल्प करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। द लास्ट वन इज बेसल बॉडी। तो फ्लैजिला का जो फिलामेंट पार्ट होता है वो कहाँ से निकलता है, एट द बेस ऑफ द फ्लैजिला। The last question says pigment containing membranous extensions in some cyanobacteria are। तो यहाँ पे किस पिगमेंट के बारे में बात की जा रही है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन का नाम क्या होगा, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, दीज आर द क्रोमैटोफोर्स विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, साइनोबैक्टीरिया में। अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें तो पहला है न्यूमैटोफोर, दीज आर द ब्रीदिंग रूट्स। किस में प्रेजेंट होंगी, उन प्लांट्स में जो कि मार्शी एरियाज में ग्रो कर रहे हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो रूट्स जमीन के बाहर निकल जाते हैं इन ऑर्डर टू टेक एयर। द नेक्स्ट वन इज हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दीज आर मॉडिफाइड सेल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। कहाँ पे देखने को मिलता है, से फॉर एग्जांपल हमें ये नॉस्टॉक में मिलता है। एंड द लास्ट वन इज बेसल बॉडी। तो अगर हम फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखें तो बेस में बेसल बॉडी होगा, दिस इज द बेसल बॉडी। इसके ऊपर प्रेजेंट होगा हुक और इसके ऊपर प्रेजेंट होता है फ्लैजिला का फिलामेंट। तो ये फ्लैजिला का पार्ट है। So the correct option here is option B. So with this, we have successfully completed all the previous year's questions from the topic Monera. If you have any query in your mind, you can comment in the comment box, and do like, subscribe and share this video with your friends. See you soon in the upcoming videos. Thank you so much.